Morning student, this is the last period of this chapter, Earth in the solar system. So today's topic is Moon, Earth, satellite. In the last period I told you about satellite, the satellite which revolve around the planet and which does not have heat and light. Clear? It receives light from the sun. Okay? These are the things in the last period I told you. Yes. Now see the next. Open at page 111. Moon, Earth's satellite. Keep your finger on that topic, children. Moon, Earth, satellite. Our Earth has only one satellite. As you all know, children, our Earth has only one satellite. That is the Moon. Yes. The diameter of the Moon is 1/4 of the diameter of the Earth. Its distance from the Earth is 3,84,400 kilometers. It is closer to the Earth than the Sun. So here what is given here? Suppose this is our Earth. This is our Earth. Here it is diameter. Yes. Suppose I divided this diameter into 4 parts. Clear? So this 1/4 part. This is 1/4 part of the diameter is the diameter of our Moon. हमारे मून का इस अर्थ के 1/4 पार्ट ऑफ द डायमीटर की जितना बड़ा हमारे मून का डायमीटर होता है. क्लियर? अगेन आई रिपीट दिस लाइन चिल्ड्रन. द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट. 1/4 मतलब एक पार्ट का डायमीटर के इक्वल मून का डायमीटर होता है. अर्थ के एक पार्ट का डायमीटर तो मून का डायमीटर होता है. क्लियर हुआ चिल्ड्रन आपको? Its distance from the Earth is 3,84,400 किलोमीटर. ये अर्थ से कितने दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर. इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? इतना है 3,84,400 किलोमीटर. It is closer to the Earth than the Sun. Yes, it is closer है. ये सन से ज़्यादा क्लोजर है. सन तो क्लोज है ही, लेकिन जितना डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में है उससे कम डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच में. दिस इज मून और अर्थ के बीच में 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है. क्लियर चिल्ड्रन? देयर आर ओनली माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशंस वेयर ऑन द मून. यस, ओनली माउंटेन्स, plains. Mountain I told you, mountains like this. Okay, plains सीधी जमीन. Clear? Plain and depression means जो गड्ढे होते हैं ना, that is the part. Okay, गड्ढे होते हैं जो नीचे जमीन होती है, गड्ढे देखा होगा आप लोगों ने. Okay, that is the depression on the moon surface. Clear? The moon has no light of its own. In the last period I told you that moon does not have any heat and light. Okay, the moon has no light of its own. It reflects the light of the sun. Yes, it receives light from the sun. Moon does not have any heat and light and it receives heat and light from the sun. Sun की light moon पर पड़ती है तो चमकता है. It does not have, okay, heat and light. So, moon has no light of its own. It reflects the light of the sun. It takes about 28 days and 8 hours to revolve around the earth. So, how much time it takes? It takes, यहाँ से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना? It takes 28 days. How many days? 28 days. 28 days and 28 days and 8 hours
to take one revolution around our planet Earth. Clear children? At the same time to rotate on its own axis. Yes, on its own axis. जैसे सारे planet अपने ही axis पर revolve राउंड करते हैं, in the same way moon also revolve on its own axis. अपने एक axis पर मतलब समझ लो एक path, एक orbit, okay, उस पर घूमता है. Clear? As a result we get to see only one side of the moon. इस कारण हमें एक ही साइड ऑफ द मून दिखता है, लाइक दैट, ऐसे. ओके, सपोज दिस इज द मून, ऐसे घूम रहा है. क्लियर? तो ओनली वी आर एबल टू सी वन साइड ऑफ द मून. नाउ फेसेस ऑफ द मून. फेसेस मतलब पार्ट्स. जैसे हमने हर दिन मून का शेप चेंज दिखता है ना. हाँ, that is the topic here, faces of the moon. Yes, let's see the topic. Now read out. Keep your finger on the topic, children. The moon appear in the sky in different shape. Yes, moon appear in the sky in different shape. Sometimes it look completely, sometimes it look half, sometimes it disappear. Okay, दिखता है, कभी फुल दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है. Yes, so the moon appear in the sky in different shapes. These different shapes of the moon are referred to as the faces of the moon. इन different faces को हम क्या बोलेंगे? Faces of the moon. कभी it looks completely, है ना, कभी it looks थोड़ा कम दिखता है, then थोड़ा और कम दिखता है, then it looks so thin. Yes, or sometimes it disappear. Yes, it is given in your book. See at last box. Okay, faces of the moon. Okay, these are the faces of the moon, children. We have already read that moon take 28 days and 8 hours to revolve around the sun. Now around the earth. The shape of the moon grow one half of this period and reduce during the other half. Okay, one half मतलब आधे दिनों तक पूरा दिखता है और आधे दिनों तक अलग ही दिखता है. Again I repeat, the shape of the moon during one half of this period and reduce during the other half. Other 15 days वो बढ़ता हुआ दिखता है, other 15 days वो कम होता हुआ दिखता है. As you all know, है ना, आप लोग सब ने स्काई में देखा ही होगा. The period when the shape of the moon grow, जब मून ग्रो होता है मतलब जब बढ़ता है, इस तरीके से पतले से बड़े फॉर्म में आता है. ओके, सो the period when the shape of the moon grow known as the waxing period. What is the period that it is? Waxing period. Underline it, children. When the shape of the moon grow, it is called waxing period. Underline it. It is very, very important. Now let's move further. The period in which shape of the moon reduce is called waning period. और जब मून का फेस रिड्यूस होता है, दैट मीन्स इट गो डिक्रीज, कम होता जाता है ना, दैट इज waning period. What is that period, children? Waning period. When it become grow, that is waxing period, and when it become reduce, that is waning period. Clear, children? Now let's see the next para. When the side of the moon facing earth, when the side, suppose the moon facing the earth. Okay, suppose this is moon facing the earth. Okay, so does not receive sunlight, we cannot see the moon. Okay, जब मून अर्थ के बिल्कुल सामने होता लाइक दिस, क्या पीछे की लाइट इस पर पड़ेगी, मेरे हैंड पर पड़ेगी? ओके, क्या बोला मैंने? सपोज अर्थ के सामने मून है. क्लियर? तो पीछे की जो सन की लाइट आ रही है मून पर पड़ेगी? नो, नहीं पड़ेगी ना. ओके, तो अगर नहीं पड़ेगी तो कैन वी एबल टू सी मून? नो, ऑन दोज डे वी आर नॉट एबल टू सी मून. इसलिए हम कुछ दिनों तक मून नहीं देख पाते हैं इन द स्काई. क्लियर चिल्ड्रन? सी, वी कैन नॉट सी द मून. दिस इज नोन एज न्यू
मून और अमावस्या, उस दिन के दिन को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। क्लियर चिल्ड्रन? व्हेन द मून लुक लाइक अ फुल डिस्क इट इज नोन एज फुल मून और पूर्णिमा। जब मून पूरी तरीके से कंप्लीट दिखता है, क्लियर, तो दैट इज पूर्णिमा। हम उस दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ओके, और जब बिल्कुल डिसअपियर होता है दैट डे इज कॉल्ड अमावस्या। ओके, क्लियर हुआ चिल्ड्रन ये पैरा? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ एस्ट्रॉइड। लेट्स रीड दिस पैरा चिल्ड्रन। एस्ट्रॉइड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ प्रोबेबली एन एक्सप्लोडेड प्लैनेट। प्लैनेट्स में जब टकराव होता है ऑन द स्पेस, ओके, तो क्या होता है, इट एक्सप्लोडेड, टुकड़े टुकड़े में हो जाता है। तो टुकड़ों के, प्लैनेट के टुकड़ों को क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉइड। ओके, एस्ट्रॉइड विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट। और ये किसके अराउंड घूमता है चिल्ड्रन, एस्ट्रॉइड? अराउंड द सन, अराउंड द सन। सन के चारों ओर एस्ट्रॉइड रिवॉल्व करता है ऑन इट्स ओन ऑर्बिट। एज यू ऑल नो, अपने ही ओन पाथ पर ये सारे रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? देयर ऑर्बिट लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये आपको और कहाँ देखने मिलेगा, मार्स और जुपिटर जो हमारे दो प्लैनेट हैं उनके बीच के डिस्टेंस पे ये एस्ट्रॉइड रोटेट, रिवॉल्व करते हुए दिखेगा आपको। किसके बीच में चिल्ड्रन, अंडरलाइन इट, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उन बीच में, उनके बीच में ये सारे प्लैनेट के टुकड़े जो एस्ट्रॉइड होते हैं, इट टेक रिवॉल्व। ठीक है? दीज एस्ट्रॉइड वेरी इन साइज, अलग अलग साइज के होते हैं, कभी बहुत छोटे, कभी बहुत बड़े, कभी बहुत बड़े। क्लियर? Ceres is the largest asteroid with a diameter about 700 किलोमीटर। अंडरलाइन इट, सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है ऑन द स्पेस, Ceres। ओके, इट हैव 700 किलोमीटर डायमीटर। इसका कितना डायमीटर होता है चिल्ड्रन, 700 किलोमीटर डायमीटर। क्लियर दिस टॉपिक? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेट्रियोर्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज मेट्रियोर्स। नाउ लेट्स रीड आउट दिस पैरा चिल्ड्रन। मेट्रियोर्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, पत्थरों के स्मॉल पीसेस होते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। इट ऑल्सो रोटेट अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड ऑल्सो रोटेट अराउंड द सन एंड मेट्रियोर्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। Sometimes these rocks enter अर्थ एटमॉस्फेयर। कभी कभी ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, बट इट कैन नॉट फॉल डाउन ऑन अर्थ मेनी टाइम्स। ओके, बिकॉज ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आते ही इट स्टार्ट बर्निंग, है ना, और अर्थ तक आते तक पूरा ऐश में बदल जाते हैं। ऐश मतलब राख जो होती है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अर्थ तक सीधा राख आती है और कुछ नहीं आता। क्लियर? और आगे देखते हैं क्या लिखा, सी meteoroids are small pieces of rock that revolve around the sun, just I told you, around the sun. Sometimes these rocks enter earth atmosphere। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे अर्थ के, are you able to see? Yes, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, क्लियर, ये एटमॉस्फेयर है, हाँ, एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आते, गिरने लगते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ये कांटेक्ट में आते हैं, इट स्टार्ट बर्निंग, इट स्टार्ट बर्निंग, बर्निंग पर आ जाते हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, इट स्टार्ट बर्निंग। Sometimes these rock enter the earth atmosphere with great speed, but due to friction with air, they usually get burned before reaching the surface of earth and appear as to a shooting star। और हमें लगता है कोई तारा टूटता हुआ हमारे अर्थ पर गिर रहा है, दैट इज मेट्रियोर्स। तो जलता हुआ जो गिरता है लेकिन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में एयर से टकराकर वो जलने लगता है, एंड इट जस्ट लुक लाइक अ शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार की तरह इट अपीयर, इट वी आर सीइंग ऑन द अर्थ, from the earth. So, however, when a meteor reach earth,
विदाउट बीइंग कंप्लीटेड, मान लो अगर बहुत बड़ा मेटियोर्स है और वो गिर रहा है हमारे अर्थ पर गिर रहा है, इट बर्न्स बट इट कैन नॉट कम्प्लीटली बर्न। कोई कोई मेटियोर्स इतने बड़े होते हैं कि वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। क्लियर? इट क्रिएट अ ग्रेट हॉलो इन द ग्राउंड कॉल्ड अ क्रेटर। तो क्या होगा, जैसे जमीन पर वो मेटियोर्स गिरा तो इट ग्रेट हॉलो, हॉलो मतलब वो जमीन में क्या करता है, गड्ढा कर देता है, लाइक दैट, हॉलो, बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। और उस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, क्रैटर्स। क्या कहते हैं चिल्ड्रन, हम क्रैटर्स। क्लियर? ओके। The chunk that fall on the earth are known as meteoroids. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो चंक जो गिर रहा है हमारे अर्थ सरफेस पर, है ना, जिसमें क्रैटर, जिसने गड्ढा बना दिया। ओके, द चंक दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो गिर गया है उसको क्या बोलते हैं हम, मेटेरियोइड्स। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, मेटेरियोइड्स। क्लियर? तो गिरा है वो तो मेटेरियोइड्स है ना, और बनाता क्या है, क्रेटर्स। क्रेटर मतलब गड्ढा बना देता है, और गिरा हुआ क्या रहता है, मेटेरियोर्स गिरता है तो मेटेरियोइड्स मिलता है कि नहीं ऑन द अर्थ सरफेस। यस, दैट इज द पार्ट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉमेट्स। व्हाट इज आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉमेट्स। लेट्स रीड आउट दिस टॉपिक चिल्ड्रन। Comets are masses of ice, dust and gases that revolve around the sun. ये किसके masses है, किसके टुकड़े हैं, आइस, डस्ट एंड गैसेस। गैसेस ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। ओके, क्लोजेस्ट टू द सन। व्हेन अ कॉमेट कम क्लोज टू द सन, जैसे ही कॉमेट सन के क्लोज आता है, क्लियर, इट गेट हीट अप एंड टर्न इनटू गैसेस, वो गर्म होता है और गैसेस में कन्वर्ट होता है। जैसे ही कॉमेट सन के कांटेक्ट में आता है, इट बिकम हीटेड, हीट तो हो गई, एंड कन्वर्टेड इनटू गैसेस। इट अपीयर लाइक अ ब्राइट स्टार विथ अ लॉन्ग टेल, वो कैसा दिखता है, जैसे जलता हुआ ब्राइट स्टार है विथ अ लॉन्ग टेल, लंबी टेल के साथ। क्लियर? लंबी टेल के साथ, टेल नहीं होती मतलब ब्राइटनेस उसकी लंबी होती है। ओके, विद हिज टेल में एक्सटेंड टू ओवर मिलियन ऑफ किलोमीटर। हेलिस कॉमेट इज द मोस्ट फेमस कॉमेट, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलिस कॉमेट, अंडरलाइन इट, हेलिस कॉमेट इज द मोस्ट फेमस कॉमेट। इट अपीयर आफ्टर एवरी 76 years. It will next be seen in the year of 2061. ओके, एक हेलिस कॉमेट है जो अब बर्निंग हो रहा है, और ये कब हम इसको देख सकते हैं चिल्ड्रन, एवरी 76 year आफ्टर, है ना, और ये कब दिखाई देने वाला है, अब 2061 में। सन की कांटेक्ट में आने से ये बर्निंग हो गया, बर्निंग होता है तो क्या होता है, हमें रोशनी पीछे तक दिखती है ना, तो इट लुक लाइक अ टेल की तरह दिखता है ना। और हेलिस कॉमेट क्या है, वो हर 76 ईयर में एक बार दिखता है। अंडरलाइन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलिस कॉमेट इज द फेमस कॉमेट। फेमस कॉमेट कौन सा होगा, अंडरलाइन कर लो, हेलिस कॉमेट। नाउ it is end for today children. Goodbye, have a good day.